Hello everyone, welcome back to my channel. Once again I'm back with a new video. In today's video, again I'm going to teach you literature of class 2nd English literature. This is the book Sparrow, a multi-skill course in English. Yes, and today we are going to read lesson number 18. So today I will be teaching you lesson number 18, means I will be giving explanation of lesson number 18, and all the book exercises of this chapter I will be uploading in my short video after uploading this explanation video. So for answer key, you can go through my shorts video. Okay, so without delaying much, let's begin our video. This is the chapter number 18. Name of the chapter is A Good Citizen. Okay, a good citizen. But before reading this chapter, I will be giving you some of the word meanings. I'll explain you some of the word meanings. Okay, beta? So that when we will read this chapter, it will be easy for you to understand the meaning of the some of the difficult words. Okay? These are the word meanings. Number 1, rushed. To move or to do something with great speed. To move or to do something with great speed. Okay? Means बेटा हम बहुत तेज हड़बड़ी में भागते हैं ना, बहुत तेज भागते हैं. Yeah, so mean to move or to do something with great speed. Number 2, stumbled. To hit your foot against something while walking and almost fall. जिसको बोलते हैं लड़खड़ा कर गिरना. ठीक है, कभी कभी हम किसी चीज़ से हमारा पैर अड़ जाता है, हम गिर जाते हैं ना. या stumbled. Third one, caught. To take hold of something that is moving. किसी चीज़ को पकड़ना. Fourth, brave. Ready to do things that are dangerous or difficult without showing fear. ठीक है, मीन्स हम जो चीज़ें डेंजरस होती है हम उसको भी एकदम कर लेते हैं ना, बिना किसी डर के. या दैट्स कॉल्ड ब्रेव. बहुत स्ट्रांगली कुछ करना. ठीक है. नंबर 5, क्लेवर. इंटेलिजेंट मीन्स चालाक. ओके, इंटेलिजेंट. चालाक मीन्स बेटा intelligent. Okay, so now let's read the chapter. Mrs. Chopra went to market yesterday. She is Mrs. Chopra. She went to market yesterday. She was carrying an umbrella with her. As you can see in her hand, there is an umbrella. Yeah, so when she went market yesterday, she was carrying an umbrella with her. जब वो कल बाजार गई तो वो अपने साथ अपना अम्ब्रेला भी लेकर गई थी. There was a bench in front of a jewelry shop. As you can see, here is one jewelry shop and there is one bench in front of this shop. Okay, इस शॉप के सामने मतलब एक बेंच थी बेटा इस ज्वेलरी शॉप के सामने. और आप बेंच देख रहे हैं ना, बेंच देख रहे हैं इस पिक्चर में जिस पर मिसेस चोपड़ा बैठी हैं. सो दे आर सेइंग कि देयर वाज अ बेंच इन फ्रंट ऑफ अ ज्वेलरी शॉप. शी सैट देयर फॉर अ वाइल. As you can see in the picture also, she is sitting on the bench now. Yeah, so they are saying there was a bench in front of a jewelry shop and she sat there for a while. जब वो मार्केट गई थी वहाँ रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप के सामने एक बेंच थी, वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई. क्या होता है कभी कभी हम चलते चलते थक जाते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा पॉज लेने के लिए बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं. या सो शी सैट देयर फॉर अ while. Might be she also tired. Na? A red Alto car came and stopped in front of the shop.
Again, as you can see in the picture, one red Alto car came and stopped in front of the shop. बेटा ये एक रेड ऑल्टो कार आई और वो उस ज्वेलरी शॉप के सामने आके रुक गई. ठीक है. A man came out of the car. One man came out of the car. जब वो कार वहाँ आकर रुकी ज्वेलरी शॉप के सामने तो उसमें से एक आदमी बाहर आया, बाहर निकला. As you can see, one man came out of the car. He had a cap. He was having cap on his head. उसने सिर पर कैप लगाई हुई थी. And a scarf round his face and neck. और उसने स्कार्फ लिया हुआ था. As you can see here in the picture, उसने स्कार्फ लिया हुआ था अपने फेस पर, फेस और नेक पर. ठीक है, राउंड करके जैसे हम ले लेते हैं ना स्कार्फ. तो इन द सेम वे ही हैड अ कैप ऑन हिज हेड एंड अ स्कार्फ राउंड हिज फेस एंड neck. He broke the window of the jewelry shop. On a sudden, when he came out, he just broke the mirror of this, broke the window of the jewelry shop. उसने जो ज्वेलरी शॉप की बाहर विंडो थी उसने इसको तोड़ दिया. मतलब उसके आगे जो भी मिरर या जो भी उसके आगे था उसने उसको तोड़ दिया. He started collecting gold jewelry. उसने क्या किया, उसको तोड़ते ही वहाँ से जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो सब इकट्ठी करने लगा. ही स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड ज्वेलरी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये देखो यहाँ पे ये विंडो है ना इसकी, है ना. तो इसने क्या किया, आते ही इसको तोड़ा और जो इसमें ज्वेलरी थी ये सब इकट्ठा करके, मतलब सब इकट्ठी करने लगा. ही स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड ज्वेलरी. He put all into his bag. He collected the jewelry and put all into his bag. उसने वो सारी इकट्ठी की और अपने बैग में रख ली. Then he rushed towards his car. फिर वो अपनी कार की तरफ जल्दी से भागा. रश्ट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, टू मूव और टू डू समथिंग विद अ ग्रेट स्पीड. तो वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा, बहुत तेज. मिसेस चोपड़ा वॉज वॉचिंग दिस. और देखो मिसेस चोपड़ा यहाँ बेंच पर बैठी ये सब देख रही थी. शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग. एज द मैन वॉज रशिंग टूवर्ड्स हिज कार. जिस टाइम वो जो आदमी था वहाँ से ज्वेलरी चुरा के अपनी कार की तरफ भाग रहा था, शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिम. जो मिसेस चोपड़ा थी उन्होंने अपना अम्ब्रेला उसकी तरफ, मीन्स रास्ते में उसको अड़ा दिया, उसकी तरफ एकदम पुश किया. जैसे हम अगर किसी को हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हम बैठे हैं और कोई जा रहा है तो हम मस्ती में अपना पैर आगे करके उसको अड़ा के गिरा देते हैं ना. हाँ, तो ऐसे ही शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिम. द मैन स्टम्बल्ड एंड फेल. वो उससे टकराया और गिर गया. ठीक है, जिसको बोलते हैं लड़खड़ाना या फिर किसी चीज़ से अटक कर गिर जाना. ठीक है, द मैन स्टम्बल्ड एंड फेल. Okay, beta, the man stumbled and fell. Then next is, जब वो गिर गया, thief shouted Mrs. चोपड़ा. एक मिसेस चोपड़ा ने एकदम तेज से चिल्लाया, चोर चोर. उन्होंने तेज से चिल्लाया. A policeman was moving there. पुलिस वैन वॉज मूविंग देयर. वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी. ठीक है, पुलिस की गाड़ी जा रही थी. Two policemen ran up and caught the thief red-handed. जैसे मिसेस चोपड़ा ने चिल्लाया तो जो वहाँ से वो पुलिस की वैन जा रही थी वहाँ से दो पुलिस वाले बाहर आए. Two policemen ran up and caught the thief red-handed. उन्होंने वो भागे और उस चोर को पकड़ लिया. ठीक है, कॉट का मीनिंग हमने बताया था ना आपको, किसी चीज़ को पकड़ना, दैट इज़ मूविंग. ठीक है, टू होल्ड समथिंग दैट इज़ मूविंग. तो उन्होंने भाग के उस चोर को पकड़ लिया. कॉट द थीफ रेड हैंडेड. रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ लिया. रंगे हाथों मीन्स सी इसके पास देखो जो इसने चोरी किया था वो चीज़ थी ना, है ना, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया. रेड हैंडेड मीन्स यही होता है बेटा, जैसे कोई किसी ने कोई चीज़ चोरी की, ठीक है, और हम उसको उसी चोरी की चीज़ के साथ पकड़ लेते हैं. ठीक है, दैट इज रेड हैंडेड. वॉट रेड हैंडेड इंडिकेट्स कि मतलब somebody steal something and the other one caught the person with the things which he or she steal. ठीक है, मतलब जैसे किसी ने कुछ चोरी किया और किसी और पर्सन ने उसको
उसी चीज़ के साथ पकड़ लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट, द शॉपकीपर एंड सम अदर पीपल ऑल्सो केम। जब मिसेस चोपड़ा ने चिल्लाया और पुलिस भाग के आई, उन्होंने उस चोर को पकड़ा, इतने में क्या हुआ, जो शॉपकीपर था और जो कुछ और लोग थे वो वहाँ पर आ गए। द पुलिसमैन टोल्ड द शॉपकीपर द होल स्टोरी। बेटा जब वहाँ पर वो शॉपकीपर मतलब कि जो उनका शॉप का ओनर था उस ज्वेलरी शॉप का, वो और कुछ लोग पीपल बाहर आ गए। जब वो आ गए तो पुलिस वालों ने शॉपकीपर को, मीन्स उस पर्सन को, शॉप ओनर को पूरी स्टोरी बताई, पूरी कहानी बताई कि मतलब क्या क्या हुआ। द शॉपकीपर कलेक्टेड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स। शॉपकीपर ने अपने जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे वो कलेक्ट कर लिए। व्हाट इज ऑर्नामेंट्स? अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट। ऑर्नामेंट्स मीन्स अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट। तो शॉपकीपर ने अपने सारे चीज़ें इकट्ठी कर ली। ही वेंट अप टू मिसेस चोपड़ा। फिर वो मिसेस चोपड़ा के पास गया। ही वेंट अप टू मिसेस चोपड़ा मीन्स शॉप ओनर, शॉपकीपर वेंट टू मिसेस चोपड़ा। ही थैंक्ड हर। उन्होंने उनको धन्यवाद किया। डेफिनेटली शी हेल्प्ड शॉपकीपर ना, सो दैट्स वाई मिसेस शॉपकीपर थैंक्ड मिसेस चोपड़ा. If somebody helps us, then we should say thank you to that person ना. We should be thankful to that person. Yeah, तो same shopkeeper also done. He said to her, you are brave and clever. शॉपकीपर ने क्या बोला मिसेस चोपड़ा को कि यू आर वेरी ब्रेव एंड क्लेवर. मीन्स ब्रेव मीन्स मैंने आपको बताया था ना, यस कोई भी डेंजरस या डिफ़िकल्ट चीज़ करना बिना डरे. ठीक है, तो उन्होंने भी तो देखो कितनी कोई चोर था वो भाग रहा था, वो कितना डिफ़िकल्ट और डेंजर वर्क था, बट उन्होंने उसको पकड़ लिया ना. दैट इज़ वाई शॉपकीपर कॉल्ड मिसेस चोपड़ा यू आर वेरी ब्रेव एंड क्लेवर. मीन्स यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट. He took her inside the shop. Then shopkeeper took Mrs. Chopra inside the shop. वो उनको अपनी शॉप के अंदर ले गया and gave her a gold ring. और उसने उनको एक गोल्ड रिंग दी. ओके, क्या दी? गोल्ड रिंग. He said, this is my way of saying थैंक यू. उन्होंने उसको वो गोल्ड रिंग दी और बोला कि ये मेरा तरीका है थैंक यू बोलने का. शॉपकीपर सेड दिस इज़ माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू. मिसेस चोपड़ा थैंक द शॉपकीपर. उन्होंने शॉपकीपर को बोला थैंक यू. ही थैंक द शॉपकीपर बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट द गोल्ड रिंग. उन्होंने उनको थैंक यू बोला मिसेस चोपड़ा ने, लेकिन वो गोल्ड रिंग एक्सेप्ट नहीं की. शी सेड, उन्होंने कहा आई एम अ गुड सिटीजन. मैं एक अच्छी नागरिक हूँ. एंड अ गुड सिटीजन इज़ नॉट पेड फॉर बीइंग गुड. और कभी भी अच्छा नागरिक अपनी अच्छाई के लिए कभी कुछ नहीं लेता. ठीक है, इज़ नॉट पेड फॉर बीइंग गुड. कभी भी हमें किसी की अच्छाई को पैसों से नहीं कंपेयर करना चाहिए. ठीक है, सो दैट वॉज द चैप्टर अ गुड सिटीजन. ठीक है, आपको समझ आया? ओके, वंस अगेन आई विल टेल यू. One day Mrs. Chopra went to market yesterday and she was carrying an umbrella with her. When she went market, she was carrying an umbrella with her. There was a bench in front of the jewelry shop. वहाँ पर एक बेंच थी ज्वेलरी शॉप के सामने और वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई. She sat there for a while and in that time a red Alto car came and stopped in front of the shop. ठीक है, उसी बीच वहाँ पर एक रेड ऑल्टो कार आई और वो उस ज्वेलरी शॉप के आगे आके रुक गई. अ मैन केम आउट ऑफ द कार. जो वहाँ से उस कार से एक आदमी बाहर आया और उसने उसके सिर पर टोपी थी और स्कार्फ था उसके फेस और नेक पर. ठीक है, उसने स्कार्फ बांधा हुआ था और सिर पर कैप ली हुई थी. ठीक है बेटा. ही ब्रोक द विंडो ऑफ द ज्वेलरी शॉप. वो आया, निकला और उसने जो विंडो थी उस ज्वेलरी शॉप की वो तोड़ दी और जो वहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स है मीन्स गोल्ड ज्वेलरी थी उसने वो सारे इकट्ठे कर लिए, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. ही स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड ज्वेलरी एंड आफ्टर कलेक्टिंग ही पुट ऑल इनटू हिज बैग. उसने वो सारी इकट्ठी करने के बाद अपने बैग में रख ली. फिर वो रखने के बाद एकदम से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा. और जब वो भागा तो मिसेस चोपड़ा ये सब देख रही थी कि उसने वहाँ से चुराया और भागने लगा.
तो जब वो भाग रहा था उस टाइम उन्होंने अपना अम्ब्रेला उसके सामने एकदम पुश किया. शी पुश्ड हर अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिम, और जिसकी वजह से वो उससे अड़ के गिर गया. द मैन स्टम्बल्ड एंड फेल. देन थीफ थीफ शाउटेड मिसेस चोपड़ा. फिर मिसेस चोपड़ा ने बहुत तेज से चिल्लाया, चोर चोर. और वहाँ से एक पुलिस वैन जा रही थी, उसमें से 2 पुलिस वाले आए, भाग के उस चोर को पकड़ लिया और उसको उसका चोरी का सामान था उसके साथ ही पकड़ लिया. और इतने में जो शॉपकीपर था, मीन्स ज्वेलरी शॉप का जो शॉप ओनर था, ही केम एंड सम अदर पीपल ऑल्सो केम. देन पुलिसमैन टोल्ड द शॉपकीपर द होल स्टोरी. जब शॉपकीपर बाहर आया तो पुलिसमैन ने, मीन्स पुलिस वालों ने उसको सारी स्टोरी बताई. देन शॉपकीपर कलेक्टेड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मीन्स ये जो सारी उसकी ज्वेलरी थी उसने वो वहाँ से ली. ही वेंट अप टू मिसेस चोपड़ा. फिर वो मिसेस चोपड़ा के पास गया और शॉपकीपर ने मिसेस चोपड़ा को थैंक यू बोला. ही सेड टू हर, यू आर वेरी ब्रेव एंड क्लेवर. देखो यहाँ पे ये शॉपकीपर अपनी गोल्ड ज्वेलरी उठाने के बाद मिसेस चोपड़ा के पास गया है ना. हाँ, तो शॉपकीपर ने उनको बोला कि आप बहुत ब्रेव और क्लेवर हो, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट हो. ही टुक हर इनसाइड द शॉप, और वो उनको अपने शॉप के अंदर ले गया और क्या दिया बेटा, 1 गोल्ड रिंग दी. ही सेड कि ये मेरा तरीका है आपको थैंक यू कहने का, क्योंकि मिसेस चोपड़ा ने उसकी बहुत हेल्प की थी. तो उसने मतलब गिफ्ट में एक रिंग दी और बोला कि मेरा थैंक यू बोलने का वे है, दिस इज़ माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू. देन मिसेस चोपड़ा थैंक द शॉपकीपर. मिसेस चोपड़ा ने बोला थैंक यू सर, बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट द गोल्ड रिंग. उन्होंने वो गोल्ड रिंग नहीं ली. उन्होंने बोला कि मैं एक अच्छी नागरिक हूँ और कभी भी अच्छे नागरिक को हमें पैसों में नहीं वो करना चाहिए, ठीक है. मीन्स उसको पैसे वैसे के लिए तोलना नहीं चाहिए पैसों के साथ, उसकी अच्छाई को, है ना. उन्होंने तो अच्छा वर्क किया, बट उन्होंने अच्छा वर्क इसलिए थोड़ा ना किया था कि ताकि उसको कुछ मिलेगा इनाम में. नो, कभी भी हमें ऐसे किसी की अच्छाई को पैसों में नहीं तोलना चाहिए. सो दैट वॉज अ चैप्टर अ गुड सिटीजन. तो इसमें मिसेस चोपड़ा जो थी वो एक अच्छी नागरिक थी, क्योंकि उन्होंने किसी की हेल्प की थी ना. कोई चोर किसी का सामान लेके भाग रहा था, बट उन्होंने हेल्प की थी उस चोर को पकड़वाने में और उनका सारा सामान वापस दिलवाने में. इसलिए तो मिसेस चोपड़ा इज़ अ गुड सिटीजन. सो दैट वॉज द चैप्टर अ गुड सिटीजन. I hope it is clear to you and all understood the chapter. Okay then, that's it for today's video, and all the exercises of this chapter I will be uploading in my short video. You can go through that. Okay, so see you again in the next video. Till then, take care, be safe, bye bye, thank you.